Good afternoon, students. Welcome to the current affairs class of Dronacharya IAS. चलिए let's start with the current affairs of 3rd March 2026. सबसे पहली news is about the Canadian Prime Minister's visit to India and the pacts which have been signed. We will study कि what has been the history of India and Canada's ties and why is this visit so important. सबसे पहले इंडिया कनाडा टाइज की एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। 1947 में डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हो गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड कनाडा वाज अ सिग्निफिकेंट प्रोवाइडर ऑफ डेवलपमेंटल एड बिकॉज इंडिया लाइक अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज अभी न्यूली डीकॉलोनाइज हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी एंड हमारे यहाँ पे बहुत गरीबी थी, लैक ऑफ डेवलपमेंट थी। तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर हमारे को एड प्रोवाइड की अंडर अ बॉडी कॉल्ड कोलंबो प्लान, जिसमें कनाडा एक बहुत इंपॉर्टेंट डोनर था। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रिएक्टर टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की फॉर सिविल पर्पसेस। प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई आफ्टर द 1974 स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट जो इंडिया ने कंडक्ट किया था फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग। 1980s में कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट बिकेम वेरी प्रोमिनेंट। Why? Because we know that a lot of migration had happened from India to Canada in the 1970s and 80s, and now this separatist secessionist movement had taken root in Canada as well. Particularly, Air India Flight 182 on the aircraft Kanishka was bombed in 1985 by a Khalistani separatist. And Indian government raised concern कि कनाडा ने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं in order to stop this movement from developing in their country. And hence, their activities have been against the interests of their partner India. साथ ही में जब हमने पोखरान 2 टेस्ट किए in 1998 which was our second nuclear test, तब भी कनाडा ने along with other western powers हम पे sanctions impose कर दिए थे। But in 2010s, अब there are economic convergences. India is an important economic power because of our demography, our size, as well as our very high economic growth. India ने 2000s में 7 to 8% of GDP growth देखा, which was very high for any country. Because of this, now Canada was also interested to strike deals and cooperate with India, and India was also interested. This led to the 2010 landmark deal for civil nuclear energy cooperation. यूएस ने भी 2008 में इंडिया के साथ डील साइन कर ली थी। दिस मोटिवेटेड अदर कंट्रीज आल्सो टू स्टार्ट साइनिंग न्यूक्लियर एनर्जी डील्स विद अस एंड हमें एनएसजी वेवर भी मिल गया था। एनएसजी वेवर मतलब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। दे डिटरमिन कि कौन सी कंट्रीज को न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट होगी और किनको नहीं होएगी। हमें एक स्पेशल वेवर मिल गया था इवन दो हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को नहीं साइन किया। Why is this important? Because Canada has the third largest uranium reserves in the world. इंडिया के यूरेनियम रिजर्व्स बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है एंड हमारा जो रिएक्टर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है 3 स्टेजेस का, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमें यूरेनियम की रिक्वायरमेंट है। Hence, this was an important deal. In 2015, there was the first visit by an Indian Prime Minister to Canada in over 40 years, and in 2018, the relationship was upgraded to that of the strategic partnership level with focus on our mutual interest areas. सबसे पहले एनर्जी, जैसे कि हमने देखा कि कनाडा इज अ मेजर सप्लायर ऑफ यूरेनियम। फॉर दैट वी हैव अ नेचुरल कन्वर्जेंस विद देम इन द एनर्जी सेक्टर। फिर एजुकेशन, Canada is a service oriented economy. Education is a very major export item for Canada क्योंकि उनके खुद के यहाँ पे इतने students और इतनी population नहीं है, which is why they have very good universities and they attract other students to come and study there. The top category in that is Indian students. And finally, the living bridge, that is the Indian diaspora that is living in Canada. However, in 2023,
Again, diplomatic tensions began between the two countries. Then Canadian Prime Minister Justin Trudeau alleged, उन्होंने ये इल्जाम लगाया that Indian government agents have a role to play in the killing of a Canadian citizen Hardeep Singh Nijjar. Nijjar एक Canadian Sikh leader थे, but he had a secessionist, or basically he was a supporter and a leader of the Khalistani movement, and he had been designated as a terrorist by India. This charge was denied vehemently by India, that this is a very serious allegation that you're making on us without any proof whatsoever, and we will not tolerate this. इसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक थॉ हो गया रिलेशनशिप में. India temporarily suspended visa services to Canadian citizens, and we requested a withdrawal of their diplomats from the Canadian missions in India. बट अगर हम आज की डेट में देखें, नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड. वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट इन द लास्ट 2 years. कनाडा में अ न्यू गवर्नमेंट हैज कम which is now willing to cooperate with India. Second, because of changing geopolitical dynamics, changing behavior on the part of the US and their strain in ties with Canada, changes that are happening in Europe because of the war with Ukraine, because of the war with Russia in support of Ukraine. All of this has now made Canada willing to cooperate with India. On this meeting, some key agreements have been signed. Let's have a look. सबसे पहले आ जाता है a 10-year uranium supply agreement. For 10 years, ये चीज फिक्स हो गया that a certain quantity of uranium इंडिया के रिएक्टर्स को कनाडा सप्लाई करेगा. सेकंड, स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप जो डिफरेंट सेगमेंट्स को कवर कर रहा है. पहले तो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई, because Canada is also an important supplier of critical minerals for clean energy and advanced technologies. Liquefied natural gas supplies, LNG में भी कनाडा बहुत बड़ा और मेजर प्लेयर है, एंड इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस. एंड ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट का जो एम है इज टू शिफ्ट टूवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि ऑयल के मुकाबले दिस इज अ क्लीनर फ्यूल. हम चाहते हैं कि 15% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर सप्लाइड बाय गैस इन द फ्यूचर to replace dirtier fuels like oil, because of which this is a natural convergence. साथ ही साथ Canada has committed that they will join two organizations जो इंडिया ने एस्टैब्लिश किए हैं. सबसे पहले they will join the International Solar Alliance. ये 2015 में इंडिया और फ्रांस ने एस्टैब्लिश की थी कि जो ट्रॉपिक्स के बीच में कंट्रीज हैं जो बहुत हाई इंसुलेशन या सोलर एनर्जी उनको मिलती है, they can form one common grid to basically operationalize a huge solar energy grid. But now it has also been open to countries which are outside the tropics. साथ ही साथ Canada has also said कि they will upgrade to full membership of the Global Biofuels Alliance, जिसमें इंडिया का काफी योगदान है उसको स्टार्ट करने में. Formal launch of the Comprehensive Economic Partnership Agreement, that is CEPA, which is basically a free trade agreement जो multiple sectors को comprehensively cover करेगा and will lead to across the table cuts in tariffs. हमारी जितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं उन सब पे टैरिफ कट्स होंगे इन अ सेपा. उसके लिए जो नेगोशिएशंस हैं उनको दोबारा लॉन्च कर दिया गया है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. नेक्स्ट इज अबाउट द एजुकेशन सेक्टर. टैलेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी साइन की है जिसके अंदर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज विल ओपन देयर ऑफशोर कैंपसेस इन इंडिया टू पार्टनर विद इंडियन यूनिवर्सिटीज, जिससे वो ट्विन डिग्रीज या डुअल डिग्रीज ऑफर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ डिप्लोमैट्स टू देयर रिस्पेक्टिव मिशंस, जिसकी वजह से जो डिप्लोमेटिक फ्रीज हो गया था या वैक्यूम क्रिएट हो गया था उसको भी अब फिक्स कर दिया जाएगा. India-Canada defense dialogue has been established for maritime domain awareness, military exchanges and defense industries. And finally, investments. Canada के जो pension funds हैं वो India में key player हैं and they have parked almost $100 billion in Indian assets. इसका reason और ये convergence को समझिए.
कनाडा इज एन एजिंग कंट्री, वहाँ पे डेमोग्राफिक विंटर की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर पॉपुलेशन अब हायर एज ग्रुप्स में पहुँच रही है, तो उनके पेंशन फंड्स काफ़ी एक्यूमुलेट हो रहे हैं, पर उनके यहाँ पे खुद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, विच इज़ वाई नाउ they have established their funds in younger growing countries like India. Then cooperation has been signaled on small modular reactor technology and advanced reactor technology. So with that, we can definitely say that there has been a reset in ties between India and Canada, with now both the countries moving towards re-establishing strong, deep ties with each other. Next, next news is about the nucleic acid test or NAT. सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू लुक इनटू द फीजिबिलिटी कि हम नैट टेस्ट को कंपलसरी कर सके फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। क्या होता है ये नैट टेस्ट, क्यों इसे कंसिडर किया जा रहा है, इसको समझते हैं। नैट टेस्ट इज न्यूक्लियक एसिड टेस्ट। न्यूक्लियक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए या आरएनए। This test will be highly sensitive and be able to detect the DNA or RNA of the particular pathogen in a blood sample. प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मटेरियल बहुत छोटी क्वांटिटीज में हमारी ब्लड में होता है इफ वी हैव एन इन्फेक्शन, जो एक डिटेक्टेबल बेसिस पे हो, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो इसकी वजह से वी नीड टेक्निक्स जो उस छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, एम्पलीफाई करें, ताकि हमारे जो टेस्ट है उसको एक्चुअली डिटेक्ट कर पाए। तो अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन दिस टेस्ट पहले जब सैंपल प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले न्यूक्लियक एसिड को एम्पलीफाई किया जाता है और फिर वो डिटेक्ट हो सकता है। इसकी वजह से जो ये टेस्ट है ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज करता है, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ट्रांसक्रिप्शन मीडिएटेड एसे और लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। There is no requirement to understand the specifics of these tests, but you need to understand कि इनका जो पर्पस होता है वो होता है न्यूक्लियक एसिड को सैंपल में मल्टीप्लाई करना, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना, ताकि वो डिटेक्ट हो सके। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये अर्ली डायग्नोसिस प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग टेस्ट। जो हमारे एग्जिस्टिंग टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट कैसे काम करता है? वो हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडीज होती हैं या एंटीजन होता है उसको डिटेक्ट करता है। एंटीजन इज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि अगर जिस पॉइंट पे आपको इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी इमीडिएटली एंटीबॉडीज थोड़ी प्रोड्यूस करना शुरू करती है। इट टेक्स टाइम 1 to 2 to 3 weeks where your body has produced enough antibody load कि वो टेस्ट में शो अप हो पाए। तो जो ये इंटरवीनिंग पीरियड है, इसमें आपके ब्लड सैंपल में इन्फेक्शन दिखेगी ही नहीं। इसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड है with life threatening diseases, for example HIV, we don't have a cure for HIV, we can simply manage the disease with medication throughout a person's life। तो ये ब्लड हमारे ब्लड बैंक में पहुंच जाएगा और आगे जो लोग ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर रहे हैं उनको ये इन्फेक्शंस हो जाएंगी, और ये हो चुका है। इसीलिए टू एंड दिस प्रॉब्लम वी आर कंसिडरिंग टू शिफ्ट अवे फ्रॉम एलाइजा टू मूव टुवर्ड्स नैट। नैट में इन्फेक्शन अगर आपके ब्लड में है तो उसका डीएनए या आरएनए डिटेक्ट हो ही जाएगा। ओनली प्रॉब्लम इज दैट इट इज relatively more expensive and difficult than the ELISA test, but it is more accurate and it provides early diagnosis. This is the need for this move. Blood donation from infected persons, particularly HIV infected persons, is not detected in the early phase of infection through the ELISA test. और अभी फिलहाल में पिछले 1 साल में there have been
लैप्सेस एंड केसेस, जब सरकारी हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक से जो पेशेंट्स को ब्लड दिया गया वो एचआईवी इन्फेक्टेड हुआ, एंड मेनी पेशेंट्स एक्चुअली कॉट एचआईवी, एंड दिस हैज रेज सीरियस कंसर्न्स अबाउट ब्लड सेफ्टी इन इंडिया। इंडिया के लिए पर्टिकुलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्लड इज सिंपली, इट्स लाइक द गोल्ड ऑफ द मेडिकल सिस्टम, इट्स लाइक एन एलिक्सियर ऑफ लाइफ। इंडिया इज कॉल्ड द थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हाई प्रेवलेंस। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी इनफ हीमोग्लोबिन नहीं प्रोड्यूस करती, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन आपके सारे ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये इसकी जेनेटिक प्रेवलेंस इंडिया में ज्यादा है बिकॉज ऑफ एंडोगेमी इन वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स। एंडोगेमी की वजह से जेनेटिक बीमारियां जैसे थैलेसीमिया का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, एंड दिस डिजीज रिक्वायर्स रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स टू मैनेज इट। Almost every 3 to 4 weeks, a thalassemia patient needs to go and get blood transfusions. So, if blood is not safe, it is a threat to their life. This was about the NAT test. Next, next news is about AI hallucination again in a trial court order. Supreme Court talks of institutional concern. Let's understand what is AI hallucination. As we are all familiar, we have something now called generative AI tools, that is Gen AI tools. बट प्रॉब्लम ये है कि ये टूल्स सर्च इंजन्स नहीं होते, इनका काम ये नहीं होता है कि ये इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें और आपको फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन डिलीवर करें। इनफैक्ट दे आर बेसिकली डिजाइंड टू प्रिडिक्ट एंड मिमिक ह्यूमन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। हाउ डू ह्यूमन बीइंग स्पीक, उसको मिमिक करने के लिए ये बने हैं। So they are basically fed a lot of past data patterns, past data, एंड उससे वो पैटर्न्स कैच करके जो अपनी वो स्पीच लिखते हैं या जेनरेट करते हैं कंटेंट, उसके बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज पैटर्न्स। जब उनसे लीगल साइटेशन मांगी जाती है एआई टूल से, दे बेसिकली आर प्रिडिक्टिंग कि भाई एक लीगल साइटेशन कैसी दिख रही होगी, एंड how what is the authentic appearance of a legal citation. So very often it simply predicts such citations through a combination of words कि probably such a combination of words will exist in legal document and it will throw it up. अब प्रॉब्लम ये है कि जुडिशरी में दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, बिकॉज दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन वेरियस केसेस दैट fictitious nonsensical cases have been thrown up by AI tools which don't even exist. Because of this, AI use in judiciary पे काफी ethical questions अब उठाए जा रहे हैं कि is it ethical? Do we need some safeguards for the use of AI in judiciary? सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर एक वाइट पेपर रिलीज किया था ऑन एआई इन जुडिशरी और इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया था कि केस फैब्रिकेशन एंड हेलुसिनेशन इज अ की रिस्क एसोसिएटेड विद एआई, एंड they recommended the establishment of AI ethics committee in courts along with independent verification of the information that is thrown up by AI tools. Kerala High Court has become the first High Court to issue a formal AI policy for their district judiciary. कि what are the safe cases of AI use and what are the cases, the use cases जहाँ पे AI का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. Next is about the Afghanistan-Pakistan issue, which we have been reading about in the news. The article is titled Rupture Across the Durand Line, and that is the basis of the issue. So let's understand what is the Durand Line. Durand Line basically international boundary है between Pakistan and Afghanistan. कैसे ये बनी, इसकी एक हिस्ट्री है. 1800s में there was something called the Great Game Rivalry between Britain and Russia. दोनों पावरफुल स्ट्रॉन्ग नेशंस थे, दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक थे, एंड दे वर बोथ competing against each other in a great game. Britain was scared that that Russia will use the Afghanistan route to essentially come and attack India, which was their crown jewel. To prevent that, they wanted to establish a buffer state in Afghanistan to keep their asset, that is British India, safely protected.
For this, they fought two wars with the Afghans in the 1800s. Both times they lost, and they realized that they simply cannot come and conquer Afghanistan. बट इन द 1890s बार बार ये प्रॉब्लम हो रही थी जो पाश्तून ट्राइब्स थे दे वुड मेक रेड्स इनटू ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी एंड दैट इज व्हाई द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फेल्ट दैट वी नीड टू डिफाइन अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम. An agreement was signed between British officer Sir Henry Mortimer Durand and then the Amir of Afghanistan, Abdur Rahman Khan. Basis of this agreement, this boundary was drawn. Problem was that this is an artificial boundary. It cuts across various tribal regions where Pashtun and Baloch communities live. And for them, this is a totally artificial boundary which they do not recognize. इसकी वजह से अफगानिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट ने इस ड्यूरैंड लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है और ये बाउंड्री डिस्प्यूट इतने सालों तक दोनों देशों के बीच में बरकरार रहा है. नाउ बेस्ड ऑन दैट पाकिस्तान का एम क्या था कि हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म करें और वो चाहते थे कि वो अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो उनसे कोऑपरेट करे, उनकी फ्रेंडली हो. नाइनटीन 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में हमला किया, अटैक किया. क्यों? क्योंकि उनको इंडियन ओशन तक पहुंचना था टू एक्सेस अ वार्म वाटर पोर्ट. दे लिव इन पोलर वाटर्स ऑफ आर्कटिक ओशन. वहां पे 6 महीने ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स जमे रहते हैं. तो अगर कल को कोई अटैक होता है तो उनकी मिलिट्री फॉर 6 months of the year is trapped. They cannot take a boat out and secure their interests, which is why they wanted access to the Indian Ocean, जहाँ पे पूरे साल पानी अनफ्रोजन होता है, बहता है और शिप्स बहती है. 1979 में जब उन्होंने अटैक किया तो after that the western powers like US were obviously worried and they wanted to oust the USSR from Afghanistan. तो इसीलिए उन्होंने covertly अफगान्स को सपोर्ट किया. कैसे? When the Soviets invaded, Afghan refugees came over to Pakistan, and Pakistan, with allegedly with US support, basically gave training funds to these Afghan refugees and made them into the Mujahideens, who then fought against the USSR and ousted them from Afghanistan. 1991 में USSR was dissolved and this problem ceased to exist. USSR was thrown out of Afghanistan. But even then, जो successor organization थी of the Mujahideens, the Taliban, जिनको ट्रेन किया गया था, they were still fostered and nourished by the Pakistani establishment. Why? Because they wanted a friendly and cooperative regime जो ड्यूरैंड लाइन को रिस्पेक्ट करे एंड एक एंटी इंडिया स्टांस बना के रखे. इवन आफ्टर द 9/11 अटैक, जब 9/11 अटैक हुआ तब यूएस बेसिकली रेज्ड इट्स एंटी टेरर वॉर एफर्ट एंड दे आस्क्ड पाकिस्तान टू बी अ पार्ट ऑफ इट. ऑन इन पब्लिक डोमेन, in front of everyone, Pakistan supported the anti-terror effort and supported the US. बट साथ ही में वो एक डबल गेम खेल रहे थे जहां पे उन्होंने तालिबान के साथ भी अपने टाइज बना के रखे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया. लेकिन अब इस रिलेशनशिप में एक दरार पड़ गई है एंड उसका सिंपल रीजन है द टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में ऑपरेट करती है एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी अटैक्स करती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है. वाई? दे हैव अ स्टेटेड एम कि हमारे को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको ओवरथ्रो करना है बिकॉज वी वांट टू एस्टैब्लिश एन इस्लामिक एमिरेट. दैट इज आवर आइडियोलॉजिकल एम. टीटीपी को तालिबान ने सपोर्ट किया है.
जब तालिबान हाइडिंग में था, बिफोर व्हेन द यूएस वाज देयर इन अफगानिस्तान, बिफोर 2021 व्हेन द यूएस लेफ्ट, तालिबान को टीटीपी ने काफी शेल्टर दिया, काफी पनाह दिया, एंड दैट इज व्हाई दे डेवलप्ड गुड टाइज. Taliban now supports the TTP in their objectives. This is not liked by the Pakistani establishment, and that is why now this fighting has ensued between the two countries. What was once relationship between a master and creation has now become a Frankenstein's monster for Pakistan. Next आ जाता है places in news. The place in news today is called Berbera Port and Somaliland. सोमालीलैंड एक सेसेशनिस्ट रीजन है सोमालिया में. इसको रिसेंटली सिर्फ इसराइल ने रिकॉग्नाइज किया है, दुनिया की और किसी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है अभी. एंड इस रीजन में एक पोर्ट है जिसका नाम है बरबरा पोर्ट. अगर आप यहाँ मैप देखें, ये रेड सी है, ये स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब है, और दिस कनेक्ट्स टू द गल्फ ऑफ आडन एंड फर्दर टू द इंडियन ओशन. बिल्कुल यहीं पे बरबरा पोर्ट है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बिजी ट्रेड हब बन चुका है. इसको यूएई की एक फर्म ने डेवलप किया है. बट नाउ सिंस इजराइल हैज गिवन रिकॉग्निशन टू सोमालीलैंड, ऐसी रिपोर्ट्स है, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे इजरायली मिलिट्री प्रेजेंस है, एंड बिकॉज ऑफ विच दिस रीजन कुड बी अंडर ईरानियन स्ट्राइक्स. जैसे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूज में, जो भी इसराइल या यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस के जोन्स हैं, इवन इन अदर कंट्रीज, दे हैव बीन अटैक्ड बाय ईरानियन स्ट्राइक्स. हेंस there is also a risk of this Berbera port in Somaliland being at risk, and that is why it is there in the news. So that was it for today's current affairs. uh, take care. We hope you are enjoying and are able to take benefit of these current affairs classes. Thank you.